Hello friends, welcome to YouTube channel Mass Academy। जैसा इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया रहा होगा सोल्यूशन चैप्टर का, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको फिर से आप याद दिला दूं कि आप सभी लोग मास एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कराएं। इस चैनल पर चैप्टर वाइज क्लास 12 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल नॉलेज, डिटेल स्टडी आपको करने के लिए मिलेगा और आप सभी लोग जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने आप से सॉल्व करने का कैलिबर डेवलप कर सकते हैं बाय सीइंग कंटिन्यूअस and complete lecture for every topic and every chapter. Today, in this lecture, I am going to provide you basic concept of vaporization, volatility, vapor pressure, and what factors can influence the volatility or the vaporization of any liquid. What is the meaning of vaporization? Just we see here, vaporization. So, topic is vaporization. Vaporization is the topic for your study. What is the meaning of vaporization? And here we will discuss about some other concept also. Vaporization means the conversion of liquid into vapor. The conversion of liquid into vapor is called vaporization. And vaporization of liquid is always endothermic process. Endothermic process means heat needed for the vaporization. Second more thing, whenever liquid is going to convert into the vapor, then the kinetic energy of molecule increases, and the kinetic energy of the molecule is directly proportional to the absolute temperature. Absolute temperature के directly proportional होता है क्या? Kinetic energy of the molecule. And the vaporization process depends on the intermolecular forces between the reactant molecules, between the general, you can say, between the product molecules whenever reaction is carried out. And in general, we are discussing about the liquid, then the vaporization, the rate of vaporization totally depends on the intermolecular forces between the molecules. Intermolecular forces are dipole-dipole interaction, dipole-induced dipole interaction, induced dipole interaction, and hydrogen bonding. These are the intermolecular forces which can influence the rate of vaporization of liquid. The conversion, इस वेपराइजेशन प्रोसेस को आगे कैरी करने से पहले मैं इसका आपको यहाँ पर कमेंट करा देता हूँ। जितना आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है, लेक्चर को ध्यान देना, लेक्चर पर बहुत ही फोकस करना है। आप फिर वेपराइजेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होंगे और वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं वेपराइजेशन या वोलेटिलिटी। किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज सेड टू बी वोलेटिलिटी ऑफ दैट लिक्विड, वोलेटाइल नेचर ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है,
the volatility and volatile nature or the escaping tendency or the vaporization totally depends on the intermolecular forces between the molecules. तो what type of forces are remember? नेम को रिमेंबर करो, नेम को याद करो. अभी मैं इस टॉपिक का जो कमेंट करने के बाद उनका मीनिंग में साइड में आपको बताता हूँ. और ये यहाँ से क्वेश्चंस आपके बड़े एग्जाम में, जैसे आपका नीट का जेई का एग्जाम जो होता है उसमें भी क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. तो ध्यान रखना, whenever we have a compound composed of polar molecules, यानी कंपाउंड में क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. पोलर मॉलिक्यूल का मतलब जिनके पास क्या हो, डाइपोल हो. पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब जिनके पास डाइपोल हो. डाइपोल को मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के रूप में रिप्रेजेंट किया. ये डाइपोल की बात हो गई. अब डाइपोल अगर आपके पास है, यहाँ पर डाइपोल है, तो जस्ट कंसीडर वी हैव टेकन कंपाउंड एंड कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. It means there are large number of molecules, and every molecule has like this type of dipole, this type of polarity. Dipole, one pole positive and one pole negative. Dipole here. Whenever we have two molecules and each molecule has a dipole, then on behalf of electrostatic force of attraction theory, you can assume, क्या एज्यूम कर सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा. एक अट्रैक्शन, यहाँ पर इंटरेक्शन जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा. तो जरा देखिए, वन इज डाइपोल, हियर आल्सो इज डाइपोल, और डाइपोल के बीच क्या यहाँ पर है, इंटरेक्शन है, दैट इज अट्रैक्शन है. तो इसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. तो हमेशा दो मॉलिक्यूल कैसे चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल्स हो, उन मॉलिक्यूल्स के बीच, अपोजिट पोल के बीच जो अट्रैक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. ओके, हियर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर नाम आप याद कर सकते हो. अभी मैं इसका आपको मीनिंग लिखता हूं. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. नेक्स्ट वन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. यानी इसका मतलब क्या हुआ, वन मॉलिक्यूल इज पोलर, नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर. यानी एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास डाइपोल नहीं है, और एक मॉलिक्यूल कैसा है, वो जिसके पास परमानेंट डाइपोल है. ठीक है. तो पोलर मॉलिक्यूल व्हेनेवर इन द विसिनिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ध्यान से समझिएगा इसको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड of the non-polar molecule get attracted by the positive pole of the polar molecule. और इस तरीके से नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एक डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाता है. अब जैसे वो डाइपोल इंड्यूस्ड होगा तो पोलर तो पहले से प्रेजेंट है, इंड्यूस्ड वाला भी डाइपोल आपके पास आ गया, उनके बीच का इंटरेक्शन इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. अब उसको अगर आप पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो. ये हो गया केस, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव. ये मॉलिक्यूल आपका कैसा है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया, आपको एज्यूम करने के लिए बोला ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. और ये कैसा है, ये पोलर मॉलिक्यूल है. ठीक है, ये इसका सेंटर है, यानी न्यूक्लियस है, मॉलिक्यूल का वो सेंटर न्यूक्लियस, बात मैंने कर दिया, उनमें भी न्यूक्लियाई. ठीक है. तो यहां पर आपका अब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आउटर, न्यूक्लियस के आउटर फेस में कौन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा. तो जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का अब कैरेक्टर ऐसा हो जाएगा. और यहाँ पर तो ये पोलर मॉलिक्यूल आपका है ही, ये पॉजिटिव और नेगेटिव. यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स इंड्यूस होता है, अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होता है. अब इस अट्रैक्टिव फोर्स को या इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम नाम देते हैं क्या, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये हमारा हो गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये देखो आपके पास आ गया. अब यहां ध्यान रखना, अब इसको दो एग्जांपल से मैं वेरीफाई कर देता हूं, आपको. अगर मैंने यहां लिया वाटर मॉलिक्यूल की बात किया, यानी वाटर कंपाउंड लिया, वाटर में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. वाटर कंपाउंड में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं.
तो वाटर मॉलिक्यूल्स में आप सभी लोग ये जानते हो कि वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच एच, और यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा, और एच पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, डाइपोल। एक को लेकर समझ लो आप, ये डाइपोल बन गया। और उसके बाद दूसरा वाटर मॉलिक्यूल फिर लेकर आएंगे आप, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ऐसे आप एज्यूम करो, यहाँ पर नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल H एंड O एंड आपका H यहाँ पर नेगेटिव आया, यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव आया। अब इनके बीच क्या हुआ, ये इंटरेक्शन हो गया। ये इंटरेक्शन आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ध्यान रखना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं उसके बारे में बात करता हूँ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है वहां पर। तो ये आपका देख रहे हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है। इसलिए अगर H इन्वॉल्व है उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में, तो हम सभी लोग नाम देंगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो ओवरऑल मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात अभी आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि डाइपोल, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के एवरी मॉलिक्यूल हैज ए डाइपोल और उनके बीच का यहाँ पर इंटरेक्शन है, इसलिए हम लोग इसको नाम दे रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी पोलर मॉलिक्यूल। दूसरा केस आप ले सकते हो, दूसरा केस वैसे ही डाइपोल की बात आप कर सकते हैं एचएफ में, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका H और F, यहाँ पर भी देखिए ये डाइपोल है, एक डाइपोल ये है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ भी हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ आपको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा दो मॉलिक्यूल के बीच। अब चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन यहाँ पर इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड, दिस इंटरेक्शन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच हाइड्रोजन इन्वॉल्व्स, हाइड्रोजन फॉर्म्स अ वीक बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो आपका कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखो, मैंने क्या लिया, डाइपोल डाइपोल की बात किया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की बात किया कि यानी आपके पास एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पोलराइजेशन के कारण जो है यहाँ पर एक डाइपोल इंड्यूस होता है, इसलिए यहां अब क्रिएट हो गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ध्यान देना, यहां परमानेंट पोलरिटी है और यहां पर एक पोलरिटी इंड्यूस की गई है। तो इंड्यूस पोलरिटी जो होती है, यानी इंड्यूस डाइपोल जो होता है वो लेस होता है कंपेयर टू द परमानेंट डाइपोल। इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एक तो ये हो गया। दूसरी कहानी जो आपके पास है, जो आपको सेकंड वन देखना है, वो देखो ये कहानी है, ये आपके पास मॉलिक्यूल, ये आपके पास मॉलिक्यूल और ये दोनों का न्यूक्लियस मैंने कंसीडर किया, मॉलिक्यूल कंसीडर किया हुआ है। मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए आप एक बात याद रखिएगा, लंदन फोर्स कहते हैं इसको, हम लंदन फोर्स के नाम से जानेंगे। जो यहाँ फोर्स ऑपरेट होगा उसे लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं। इसको कैसे फील करोगे, जस्ट फील विथ मी, ये सेंटर किसी भी मॉलिक्यूल का सेंटर है। हम एटम की बात अभी नहीं कर रहे, एटम की बातें छोड़ दिया मैंने, एटम में कुछ नोबल गैसेस है, वहां पर आपको यही डिस्पर्सन फोर्स देखने के लिए मिलता है। तो एटम है, अब इस एटम के न्यूक्लियस के राउंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो वेव मैकेनिकल अप्रोच क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये कॉन्टिन्यूअस टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है। ध्यान रखना, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा, तो आप फील करो जैसे ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा, तो यहां नेगेटिव डेंसिटी ज्यादा हो गई और यहां पॉजिटिव डेंसिटी हो गई। तो क्या ये डाइपोल बना कि नहीं बना? तो ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण यहां पर क्या हुआ, डाइपोल इंड्यूस होता है, टेम्पररी यहां पर डाइपोल क्या होता है, वो इंड्यूस होता है। और ये ऑसिलेशन चूंकि कंटिन्यूअस रहता है, इसलिए जो नियर बाई मॉलिक्यूल्स है, नियर बाई मॉलिक्यूल्स में भी कहानी वही बनेगी, नियर बाई मॉलिक्यूल्स में भी कंडीशन वही बनता है। तो अब जैसे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑसिलेट करके दूर गया, और जस्ट फील उसके बगल में भी मॉलिक्यूल जो बैठा हुआ उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी मूव करके दूर गया। तो यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, और यहां आपका न्यूक्लियस हो गया। तो दोनों के बीच एक
एक टेम्पररी फोर्स, एक वीक फोर्स यहां डेवलप होता है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स यहां डेवलप होता है, जिसे हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। अगर इसको मॉडल में रिप्रेजेंट करना हो, देखिए इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करके ये न्यूक्लियस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ पहले मॉलिक्यूल का, और दूसरे मॉलिक्यूल में भी कहानी वही होगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा, और इनके बीच क्या ऑपरेट होगा, ये इंड्यूस इंडक्शन आ गया। यहां पर देखिए इंडक्शन के कारण यहां पर आ गया इंटरेक्शन, ये अट्रैक्टिव इंटरेक्शन डेवलप हुआ। तो चूंकि ऑसिलेशन के कारण डाइपोल जनरेट हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी जो होगी वेरी पुअर होगी, इसलिए दिस फोर्स इज कॉल्ड वीकेस्ट फोर्स एमंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इनके कंपैरिजन में ये फोर्स आपका वेरी वीक होगा। दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट वन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप ध्यान रखना, अब आपके पास 4 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गए, 4 टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गए। अब इनको मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं। एक हो गया आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। दूसरा आपका हो गया डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा आपका हो गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और चौथा फोर्स आपका हो गया डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, और इसे लंदन फोर्स कहते हैं, और इसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये 4 टाइप के फोर्सेस हैं, जो कि 4 टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो कि वोलेटिलिटी को डिफाइन करते हैं, वोलेटिलिटी को कंट्रोल करते हैं, अर्थात वेपराइजेशन को कंट्रोल करते हैं, अर्थात रेट ऑफ वेपराइजेशन को ये कंट्रोल करते हैं। अब यहां पर देखें, जो मैंने वेपराइजेशन टॉपिक लिया, आपको अपने लिए कितना कमेंट करना है, और मैंने बहुत सारी चीजें बताई आपको। ये बार बार लेक्चर सुनोगे, अपने आप याद हो जाएंगे, और वो पिक्चर जो मैंने बना कर रखा था, वो पिक्चर भी आपको याद हो जाएंगे। अब वेपराइजेशन का मतलब क्या हो गया, द conversion, the conversion of liquid, the conversion of liquid into vapor is called vaporization, is called vaporization. Conversion of liquid into vapor is called vaporization. इसको आप सभी लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिक्विड, और यहां पर वेपर, यहां आपने क्या दिया, हीट दिया। ध्यान रखना, यहां पर हमने लिखा लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड इनटू वेपर की बात हो गई। तो अगर कंटेनर आपका क्लोज नहीं है, अगर कंटेनर क्लोज नहीं है, तो क्या होगा, ये लिक्विड कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट होकर पूरे कंटेनर से, पूरे वेसल से, पूरे पॉट से स्कैप कर जाएगा। लेकिन अगर यही आपका, यानी मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये कहानी कब होगी, ओपन वेसल में होगी, ओपन वेसल में, ओपन वेसल। और अगर यही बात आप ध्यान रखना, इसको लिक्विड, लिक्विड को ऐसे बनाया मैंने, लिक्विड वेपर, लिक्विड वेपर, ये क्या होगा,
ये क्लोज्ड वेसल में होगा, क्लोज्ड वेसल में होगा, ठीक है, क्लोज्ड वेसल में। तो इस तरीके से आप सभी लोग यहाँ पर वेपराइजेशन प्रोसेस को इमेजिन कर सकते हो और अपने लिए नोट्स फॉर्मेट कर सकते हो। ये जनरल मैंने कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। जस्ट सी हियर, कुछ टर्म में बता दूं, क्योंकि मेरा टॉपिक तो वेपराइजेशन है, बट थोड़ा सा और बातों को ध्यान रखो। वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन, यानी कि व्हेनेवर वेपर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, और इन जनरल यू कैन से लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है, ये आपको शायद याद रहेगा। और मैं यहाँ पर आपके इस पर या लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना इसको। द कन्वर्जन, ध्यान रखना ये मैं वेपराइजेशन प्रोसेस पढ़ रहा हूँ, उसमें मैंने ऐड कर दिया केवल। द कन्वर्जन ऑफ वेपर, वेपर इनटू, द कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, liquid is called, the conversion of vapor into liquid is called condensation. Condensation or liquefaction, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन, ये एक टर्म हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग चलते हैं, कुछ और डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं। द कन्वर्जन ऑफ वेपर, the conversion of vapor into solid, the conversion of vapor into solid is called deposition. is called deposition. यहां पर भी ये भी टर्म याद कर लीजिएगा कि अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है कौन, वेपर या गैस, उसको कहेंगे डिपोजिशन, वो डिपोजिशन के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड is called solidification, ठीक है। एक और आप यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन कर लो, और वो डेफिनेशन क्या है आपका, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड into liquid is called, solid into liquid is called fusion or melting, ये हो जाएगा मेल्टिंग का प्रोसेस। अब उसके बाद अगर आपसे बात किया जाए, द conversion of solid into vapor यानी गैस, you can say gas is called sublimation, ये सबलिमेशन के नाम से जानेंगे आप। इतनी बातें आपको मैंने एक्स्ट्रा में इसमें मेंशन कर दिया, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेपराइजेशन। तो we have taken the definition of vaporization and we have created two conditions. Whenever the vaporization process is carried out in open pot, then situation will reach when all of the liquid get escaped from the vessel, and whenever the vessel would be closed, then the vaporization and the
vaporization and the condensation, both processes will take place simultaneously, and liquid converted into vapor and vapor into liquid. ये जनरल बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर क्लोज वेसल में आप लिक्विड को हीट कर रहे हो, लिक्विड को एनर्जी आप दे रहे हो, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे, बट above the surface of liquid, condensation occurs, and now the vapor is going to convert into liquid, and both the processes taking place simultaneously. And in the closed vessel, in the closed container, in the closed pot, whenever vaporization and condensation take place simultaneously, then a situation will reach when rate of vaporization becomes equal to the rate of condensation. That state is called the equilibrium state. इस स्टेट को क्या कहते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम स्टेट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अब हम लोग क्लोज वेसल की बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या लिया? हमने लिया लिक्विड। अब यहां से फिर आप अपने मेन नोट्स की बात करेंगे। लिक्विड लिया, लिक्विड को हमने यहां पर ये ऐसा दिखा दिया, और ये हमने दिखाया हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हमने यहाँ पर हीट सप्लाई किया, और हीट सप्लाई करने के बाद लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद वेपर फिर क्या हो रहा है? वो कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए डीप में चलने की बात यहाँ पर किया जाए, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं हम लोग। जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सपोज करिए कि आपने ये लिक्विड का सरफेस डिफाइन किया, ये पूरा का पूरा लिक्विड है और ये लिक्विड का सरफेस है, और जब आप यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हो बाय यूजिंग द बर्नर, बाय यूजिंग द स्पीड लैंप यू कैन से, तो यहाँ पर एनर्जी जब इसको आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो अब यहाँ पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग अवॉइड करेंगे। अब देखो, हीट आप सप्लाई कर रहे हो, तो ये बॉटम का जो मॉलिक्यूल होगा वो हीट को हाई अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी राइज करेगी, और वो क्या होगा? अपने एबव वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, एबव वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने के बाद अपनी हीट को क्या करेगा? वो ट्रांसफर करेगा, यानी अपनी एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ हीट वो ट्रांसफर करेगा उसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल को। और कंडीशन क्या आएगा कि जस्ट वी हैव टू फील, कंडीशन क्या आएगा? एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो सरफेस पर बैठा हुआ मॉलिक्यूल होगा, वही उसी मॉलिक्यूल की एनर्जी इनलार्ज कर जाएगी, एनहांस कर जाएगी, और एनहांस करने के बाद वो मॉलिक्यूल पहले स्केप करके वेपर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब वेपराइजेशन generally taking place from the surface, not from the bulk of the sample taken by you during the experiment. तो यहां से अब यहां से स्केप करेगा, यहां से स्केप करके, और ये कंटेनर कैसा? हमारा क्लोज कंटेनर है। अब वेपर के मॉलिक्यूल, वेपर जो के मॉलिक्यूल है यहाँ पर आ गए, वेपर के मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर के, अब ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? वेपर में। ये पूरा का पूरा एरिया, ध्यान समझिएगा इसको, ये पूरा का पूरा एरिया अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? ये वेपर है, ये वेपर है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा लिक्विड है। ठीक है, तो वेपर लिक्विड की बात यहाँ पर हो रही है। अब ये लिक्विड क्या हुआ? इसके सरफेस से मॉलिक्यूल निकल करके वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वेपर में जब कन्वर्ट हुआ, तो वेपर के मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर, ध्यान देना, वेपर के जो मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अपर वॉल से कोलाइड करेंगे, वो अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी वो क्या करेंगे? वॉल को ट्रांसफर कर देंगे, और वॉल को जब ट्रांसफर कर देंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो वेरी ड्रॉप में आ जाएगी, मानी मैक्सिमम ड्रॉप करेगी, और सबसे पहले इस अपर सरफेस वाला मॉलिक्यूल जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद फिर अपर वाला जब मॉलिक्यूल यहाँ पर आया, ये यहाँ पर डिपॉजिट होकर के यानी लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, जैसे वो ड्रॉप करके नीचे आएगा, उसके जगह पर उसके लोअर वाला मॉलिक्यूल जाएगा और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। मेरे कहने का मतलब, यहाँ जो कहानी आपके लिए बन रही है, आप क्या दिमाग में रखोगे कि ये जो सरफेस है, सरफेस का मॉलिक्यूल स्केप करके वेपर में कन्वर्ट होगा, और जाकर के कंटेनर की अपर वॉल से कोलाइड करने के बाद अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, और जब अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, तो वॉल पर जो चिपका हुआ मॉलिक्यूल है वही सबसे पहले क्या करेगा? कंडेंस करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। माय डियर्स, अब जरा एक आप एक्सपेरिमेंट, जो घर में बैठे एक्सपेरिमेंट को देखे होंगे कभी, आपने किया होगा, किया तो नहीं होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, लेकिन अगर देखे होंगे तो उसको एक बार फिर करके देखना। एक छोटा सा आप कोई भी वेसल ले लीजिए, उसमें आप वाटर को ले लीजिए, या कांच का अगर ले लेंगे, ग्लास ले लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसमें आपको विजिबिलिटी आएगी, थोड़ी सी देखोगे आप, और उसके बाद
आप उसे हीट सप्लाई करो, ऊपर से एक जो कार्क लगा दीजिए, वो भी कांच का ही हो। आप क्या देखोगे, जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होकर के जाएगा, तो जो लिक्विड के जो वेपर के ड्रॉप्स हैं, जैसे ऊपर वाले वॉल से यहाँ कोलाइड करेंगे, तो वहां पर लिक्विड ड्रॉपलेट्स आपको डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा। वो ड्रॉप करता है पहले, तो लिक्विड का सरफेस का मॉलिक्यूल स्केप करता है, ठीक है। और उसके बाद जो वेपर का मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल है, वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जो ऊपर वाले वॉल से कोलाइड किया होता है, क्योंकि अपनी एनर्जी, अपनी हीट को क्या करता है, वो वॉल को ट्रांसफर कर देता है। ये है पूरा वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की बात मैंने आपको बताया कि कंडेंसेशन कहां से स्टार्ट होगा। हालांकि एनर्जी तो एब्जॉर्ब बॉटम वाले मॉलिक्यूल से होती है, लेकिन वो कोलिजन होते हुए क्या करते हैं, वो सभी अपर वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो अपर वाले मॉलिक्यूल उसके ऊपर आप कोलाइड करने का चांस है नहीं, उसके पास इतनी एनर्जी हो जाती है तो वो स्केप कर जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से वो दूर हो जाता है। स्केप करने के बाद वो चला गया कहां पर, वेपर में कन्वर्ट हो गया। ये है प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। आप, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि इस पॉइंट को, इस चीज को बार बार आप सुनोगे तो चीजें एकदम ओपन हो जाएगी, एकदम आप फील कर पाओगे, आपके अंदर एक थीम बन जाएगी। इस तरीके से वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की बात हम लोग करते हैं। आओ थोड़ा और आगे चलते हैं। ये क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड में हो रहा है, जैसा मैं, हम लोग टॉपिक लिए हुए हैं, ये फॉरवर्ड में हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये बैकवर्ड में हो रहा है, ठीक है। अब मैं कह दूं कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन का रेट, लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन का रेट और वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन का रेट, whenever both the rates become equal then the state is called equilibrium। तो यहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, when the rate of vaporization and rate of condensation become इक्वल, यानी कुल मिलाकर के दोनों का अमाउंट फिक्स हो जाए, वेपर का अमाउंट भी फिक्स हो जाए, लिक्विड का अमाउंट भी फिक्स हो जाए, यानी दोनों क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। इक्वल हो या ना हो वो मैटर नहीं है, दोनों का अमाउंट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अगर दोनों का अमाउंट वहां कांस्टेंट हो गया तो स्टेट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। यानी अब टाइम के साथ, अब वो टाइम के साथ अमाउंट में कोई चेंज ना हो तो वो आपका कहलाएगा बिकम इक्वल, देन द स्टेट is called equilibrium। The state is called equilibrium state। ये इक्विलिब्रियम स्टेट की बात हम लोगों ने कर लिया। वेपराइजेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन अगर ओपन वेसल में होगा तो टोटली वेपराइजेशन ही होगा, अगर वही क्लोज वेसल में होगा तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों साइमल्टेनियस होंगे। और एक सिचुएशन, एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होंगे, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो स्टेट कहलाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। इस तरीके से आप ये डिफाइन कर सकते हो। और मैंने इसमें बहुत सारी बातें बताई, हर बात को आपको मेमोरी में लानी है कि वेपराइजेशन कहां से स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन कहां से स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन होता क्यों है, ठीक है। वो क्योंकि अपनी एनर्जी को क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। किसको ट्रांसफर करता है, वो वॉल से जो कोलाइड करता है उस वॉल को ट्रांसफर करता है। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वेपराइजेशन क्लियर रखना होगा। अब अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो फिर ध्यान देना यहाँ, और आगे की कहानी, और आगे की कहानी और अच्छी है। और वो क्या अच्छी है, आइए चलते हम लोग। फैक्टर्स affecting the rate of vaporization or nature of volatility, nature of volatility
nature of volatility of liquid, nature of volatility of liquid. इसमें पहला पॉइंट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये पहला फैक्टर है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन molecules, between molecules largely affect the rate of vaporization, full stop. Stronger the IMF, stronger the IMF, intermolecular forces, less the rate of vaporization, that is less volatile liquid, अब आप देखें, इस पॉइंट को समझे और डीप में विथ एग्जांपल समझा जाए। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैंने कितने बताए आपको? 4 टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बात किया गया। अगर 4 टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो उसमें मैंने फोर्सेस का ऑर्डर बताया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल, स्ट्रॉन्गर देन इंड्यूस्ड डाइपोल, आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और स्ट्रॉन्गर देन इंड्यूस्ड डाइपोल। डिस्पर्सन फोर्स सबसे वीक फोर्स है, डिस्पर्सन फोर्स, लंडन फोर्स, ठीक है। तो अब इसमें आपको कोई भी लिक्विड आपके पास रखा गया, पहले आप देखो, पहले आप ट्रेस करो क्या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी होगी तब वहां पर देखना होगा कि कौन सा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रामोलिकुलर है। इंटरमोलिकुलर का मतलब हो गया डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर का मतलब हो गया कि सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। तो पहले आओ इस चीज को पहले क्लियर करो, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत सारे क्वेश्चन आपको देकर जाएगा जी, इसलिए ध्यान रखना इस पर। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ऑर्डर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, ये स्ट्रॉन्गर होगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये स्ट्रॉन्गर होगा। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसे दूसरा क्या बोलते हैं? लंडन फोर्सेस, या इसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस, ये ऑर्डर हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जब ऑर्डर हो गया तो अब आप ये कहोगे
जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर वोलेटाइल नेचर लेस होगा, अर्थात वो लिक्विड लेस वोलेटाइल होगा, देन उसका रेट ऑफ वेपराइजेशन पुअर होगा। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, वेन एवर वी हैव टू कंपेयर volatile nature or extent of vaporization or extent of volatility, then we have to keep constant temperature. Every liquid का volatile nature को कंपेयर करने के लिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सभी लिक्विड का स्टडी करेंगे, तब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा लिक्विड मोर वोलेटाइल है या लेस वोलेटाइल है। ठीक है, तो अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ऐसी बातें अगर हम लोग करते हैं तो इनमें आपको केवल क्या केयर करना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर है। जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका वोलेटाइल नेचर सबसे कम होगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा अटैच्ड होंगे और उन फोर्सेस को वीक करने के लिए, फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और हमें वहां प्रोवाइड क्या करना है, थर्मल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। तो थर्मल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ रही है, इसलिए उन फोर्सेस को वीक करने के लिए, उन फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें टेम्परेचर यानी और एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो ऐसा लिक्विड लेस वोलेटाइल होगा। लिक्विड है, वोलेटाइल तो होगा ही, लेकिन वोलेटाइल नेचर वो डिपेंड करेगा, या वोलेटिलिटी एक्सटेंट, रेट ऑफ वेपराइजेशन, ये डिपेंड करेगा कि उनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है। तो अब आइए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं यहां एग्जांपल से कंपेयर कराता हूं। हमारे पास ये H2O की बात कर रहे हैं। आप जानते हो H2O में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती रहेगी, ये भी कहीं अपना करता रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हो गया कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और यही बात यहां भी देखो, हमने यहां लिया H और यहां लिया ET हम उसके लिए लिखते हैं C2H5 के लिए, ET C2H5 के लिए लिखते हैं, मतलब एथिल। ठीक है, एथिल, C2H5 एथिल, ET लिखा जाता है उसके लिए। और यहां पर दूसरा एथिल अल्कोहल हो गया, तब आपका ये एथिल अल्कोहल मॉलिक्यूल आप नेक्स्ट लीजिए, ये आपका H और फिर आपका ये ET, ये बॉन्डिंग होती जाएगी। दिस बॉन्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी ये बॉन्डिंग भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट अब देखिए दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन दिस बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू दिस बॉन्डिंग। यहां पर सबसे बड़ा रोल जो है तो एथिल ग्रुप का है। एथिल ग्रुप इज बल्कियर, एथिल ग्रुप इज बल्कियर, दैट्स व्हाई रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटा देता है, कम कर देता है। इसका मतलब इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना होकर के लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इससे कंपैरिजन में। इसलिए वाटर इज लेस वोलेटाइल देन एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल यानी वाटर का वोलेटाइल नेचर लेस होता है कंपेयर टू एथिल अल्कोहल। और आपका जवाब क्या होगा, ओनली द आंसर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर कंपेयर टू द एथिल अल्कोहल। ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर को लेकर के। दूसरा ध्यान देना, अगर मैं आपके पास इस मॉलिक्यूल को लाऊं, ये सब नीट और जेईई में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर इस मॉलिक्यूल को लाऊं, इसको बोलते हैं फिनॉल, यहां पर आपका है
एथिल अल्कोहल, ये फिनॉल है, ठीक। whenever OH group is directly linked with the benzene ring, that compound is called phenol। और यहां मैंने रखा NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप रख दिया मैंने, ठीक है, ऐसा रख दिया। अब आप यहां क्या देखोगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच यहां एक बॉन्डिंग होती है, लेकिन तो मॉलिक्यूल एक ही है, मॉलिक्यूल आपका एक ही है, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए यहां क्या था, इंटर, यहां क्या हुआ, इंट्रा हुआ, ये इंट्रा हो गया। तो आप सभी लोग क्या ध्यान रखना कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक में इंट्रामॉलिक्यूलर हो और एक में इंटरमॉलिक्यूलर हो, ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर मोर वोलाटाइल, इंट्रामॉलिक्यूलर मोर वोलाटाइल देन इंटरमॉलिक्यूलर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड जिनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो मोर वोलाटाइल होगा कंपेयर टू द कंपाउंड हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप याद रहेगा। इसको मैंने इतने स्लो में बोला कि आप इसको लिख भी सकते हो। फिर सुन ले मेरे लैंग्वेज को। मैंने बोला वी हैव टू कंपाउंड्स इन विच वन हैज intermolecular hydrogen bonding, second one has intramolecular, then intramolecular hydrogen bonding containing compound will be more volatile than the compound having intermolecular hydrogen bonding। क्योंकि इंट्रामोलिकुलर क्या करता है, इंट्रामोलिकुलर क्या करता है, वह चिलेशन कर देता है। क्या करता है, चिलेशन कर देता है। उस चिलेशन की वजह से अब यह मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा नहीं जुड़ सकता। ऐसे में somewhat two molecules become free, somewhat they become free। इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से क्या है, पहले से ही काइनेटिक एनर्जी अधिक है और थोड़ी सी आपने थर्मल एनर्जी दे दिया, काइनेटिक एनर्जी और क्या हो गई, बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई तो उनके वोलेटाइल नेचर क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, अर्थात यहां पर मोर वोलेटाइल लिक्विड हो जाएगा। इसका एग्जांपल है, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। ऐसे ही जरा देखो, इसको जरा ध्यान देना। This compound is paranitrophenol। In paranitrophenol there is intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding here। यहां पर क्या इंटरमोलिकुलर है और यहां पर क्या था, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो आपके पास क्या हो गया, एक इंटर हो गया और एक क्या हो गया, इंट्रा हो गया। तो आप सभी लोग, अब हम उम्मीद करते हैं जो पहला पॉइंट मैंने इंटरेक्शन की बात किया, तो पहले आप क्या देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या डाइपोल डाइपोल है या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है या इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स हाइड्रोजन, देन डाइपोल डाइपोल, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, देन लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। दूसरी बात, आओ थोड़ा सा ध्यान दो। इस पॉइंट में एग्जांपल मैं करा दे रहा हूं, एक आगे एग्जांपल लेकर के आप मेंशन कर देना। अगर मान लो कि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है इस तरह का कि वोलेटाइल नेचर किस किन फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट होगा, तो वो आपके पास एक पॉइंट पहला लेना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड है, और उसके बाद आप आराम से यहाँ डिफाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल लेकर दे देना।
बट आप कॉन्सेप्चुअल वे में आप सभी लोग बहुत ही क्लियर कट रहना, क्योंकि जो एग्जाम जिसके लिए आप सभी लोग एग्रेसिव होते हो, सबका ख्वाब होता है कि हम जेई में जाएंगे, मैथमेटिक्स ग्रुप वाले, हम नीट को क्वालिफाई करेंगे, बायोलॉजी वाले, तो ये सब जो आप स्टडी करते हो, जहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही थीम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो तो आपको वहां पर डिफ्रेंशिएट करना सीखना होगा। इसलिए टॉपिक को डिटेल में मन में आप रखने का प्रयास करिए। एग्जाम्पल देखो, अब जैसे ईथर की बात करेगा, ईथर जिसका जनरल फार्मूला ROR प्राइम होता है। ईथर्स, मैं ईथर्स लिख दिया, ROR, ईथर्स आर मोर वोलाटाइल, ईथर्स आर मोर वोलाटाइल देन अल्कोहल्स। क्योंकि अल्कोहल में क्या पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और ईथर में इस तरह की बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। वहां पर वीक इंटरेक्टिव फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वहां पर क्रिएट होता है। इसलिए ईथर मॉलिक्यूल्स के बीच वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं कंपेयर टू द अल्कोहल्स, क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो अब आप सभी लोग ये वेरी इजी गोइंग में कह सकते हो कि ईथर्स आर मोर वोलाटाइल कंपेयर टू द अल्कोहल्स। ऐसे ही आप जरा देखें, दूसरा में कंपेयर, ईथर्स आर लेस volatile than liquid hydrocarbons। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, लो भाई मजेदार चीज आ गई आपका। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स आपके पास ऐसा होगा, RH होगा, ऐसा कोई कंपाउंड होगा हाइड्रोकार्बन। तो लिक्विड RH आपका लिक्विड हाइड्रोकार्बन है, और ईथर है। ईथर में समवॉट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ, थोड़ी पोलरिटी वहां पर होगी। लेकिन हाइड्रोकार्बन टोटली एंड कंप्लीटली क्या होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। अगर वो कंप्लीटली नॉन पोलर हैं तो ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन्स में ऑपरेट होने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो होता है डिस्पर्सन फोर्सेस, मींस लंडन फोर्सेस, मींस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होते हैं वहां पर। तो दीज फोर्सेस यानी द फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड हाइड्रोकार्बन वेरी पुअर, वेरी वीक कंपेयर टू द ethers. That's why ethers are less volatile than the hydrocarbons. So hydrocarbon, whatsoever the molecular formula, whatsoever the molecular weight, but hydrocarbons are more volatile. Liquid hydrocarbons are more volatile than the ethers. So alcohol, ethers and hydrocarbons, alcohols, ethers and hydrocarbons, इनमें compare करना हो, alcohols less volatile then ethers less volatile than corresponding liquid hydrocarbons, whatsoever the hydrocarbons. But water, alcohol, ether, hydrocarbon, water is less volatile than alcohol, than ether, than हाइड्रोकार्बन। इस तरीके से आप इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बेस पर ये बता सकते हो कि लिक्विड हमारा मोर वोलाटाइल होगा, यानी उसका रेट ऑफ वेपराइजेशन हाई होगा या रेट ऑफ वेपराइजेशन लो होगा। ओके, अब उसके बाद पॉइंट टू आपको लेना है। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बाद अब ढेर सारे फोर्सेस जो मैंने इसमें मेंशन कर दिया। अब देख लो, पहला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देगा वो। अगर आप लोग आराम से क्वेश्चन को इस जो टॉपिक मैंने समझाया उसको थीम में लाओगे, उसके बारे में विचार करोगे, तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है जो कि वेपराइजेशन को अफेक्ट कर सकता है, वह है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द liquid also
affect the rate of vaporization, rate of vaporization। ये आपका सरफेस एरिया भी आपका बता सकता है रेट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि अगर वेपराइजेशन रेट को कंपेयर करना हो तो आप क्या करो, सरफेस एरिया को आप बढ़ा दीजिए, लिक्विड सरफेस एरिया को बढ़ाइए, पर्टिकुलर लिक्विड की बात की, कंपेरेटिव नहीं। यहाँ पर सरफेस एरिया जो है ना, सरफेस एरिया जब भी आपको लेना होगा ध्यान रखना, ये कंपेरेटिव नहीं होता, ये उसी लिक्विड की बात होती है, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना, उसके सरफेस एरिया को कम करना, उस पर डिपेंड करेगा। तो सरफेस एरिया अगर बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ दैट लिक्विड जो है वो इंक्रीज करेगा। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दो द रेट ऑफ vaporization, the rate of vaporization increases on increasing the surface area, or increasing the surface area। ठीक है, these are the factors which can affect the rate of vaporization, यानी कि volatility of the liquid। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब इसमें एक आध दो क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन, arrange the following on increasing order of volatile nature, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वोलेटाइल नेचर, यानी कि वोलेटाइल नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम कुछ लिक्विड लिख रहे हैं, इनको अरेंज करना है। तो एक है आपका C2H5OH है और CH3 आपका OH है, C2H5OC2H5 ये है, और उसके बाद C6H14 है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और इन मॉलिक्यूल्स के वोलेटाइल नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें देखना है ये हमारे दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं जी, बोलो जी, अल्कोहल है ये, दीज आर द अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ईथर है, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट है, तो हाइड्रोकार्बन है। अब अल्कोहल अल्कोहल, यहाँ दोनों में क्या पाया जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। ठीक, जब ऐसी कहानी बन जाती है तो आप आराम से बातें कर सकते हो कि एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट हायर होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट हायर होगा कंपेयर टू द मेथिल अल्कोहल। तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, वंडरवाल फोर्स को अफेक्ट करता है, वंडरवाल फोर्स को बढ़ाता है अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो वंडरवाल फोर्स यहाँ पर जो भी आपने फोर्सेस के बारे में बात किया, तो वंडरवाल फोर्स यहाँ पर क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ पर वीक होगा, इसलिए यह लेस वोलेटाइल होगा मेथिल अल्कोहल के कंपैरिजन में। और ये ईथर है, ईथर व्हाटसोएवर उसका वोलेटाइल नेचर अल्कोहल हमेशा ज्यादा होगा और हाइड्रोकार्बन का सबसे हाई होगा। हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, C2H5OH लेस वोलेटाइल देन CH3OH less volatile than C2H5O, C2H5 less than C6H14। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वोलेटाइल नेचर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज कुछ वेपराइजेशन टर्म बताया, कंडेंसेशन टर्म बताया, डिपोजिशन बताया,
सब्लिमेशन बताया, लिक्विफिकेशन बताया, सॉलिडिफिकेशन बताया। उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेट कब डेवलप होता है वो भी मैंने आपको बताया इस टॉपिक में। और कौन से ऐसे मेन फैक्टर हैं, मैं मुझे एक फैक्टर पर ज़्यादा फोकस करना था क्योंकि उस फैक्टर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, और वो था आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बेस पर आपको वोलेटाइल यानी रेट ऑफ वेपराइजेशन को कंपेयर करना था कि कौन सा लिक्विड हमारा मोर वोलेटाइल है, कौन सा लिक्विड हमारा लेस वोलेटाइल है। उसमें मैंने आपको फोर्सेस का नाम बताया, फोर्सेस का ऑर्डर बताया। सबसे स्ट्रांग फोर्स आपका हार्डवेयर बॉन्डिंग, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और उसके बाद आपका हो जाएगा लंडन फोर्स यानी डिस्पर्सन फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद उसमें मैंने सरफेस एरिया की बात आपसे किया। तो मॉलिक्यूलर वेट भी आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट भी अफेक्ट कर सकता है क्या, मॉलिक्यूलर वेट कैन आल्सो अफेक्ट द और रेट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट हायर है तो मॉलिक्यूल्स के बीच वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रांग हो गए। अगर आप चाहो तो तीसरे पॉइंट में इसको मेंशन कर लो, इस क्वेश्चन के बाद तीसरे पॉइंट में इसको मेंशन कर लीजिए, द molecular weight also affect the volatile nature of liquid, as the molecular weight increases, the volatile nature decreases. Due to increasing, it is due to increasing van der Waals forces, van der Waals forces of attraction लिख दो यहाँ पर, ज़्यादा अच्छा रहेगा, of attraction, van der Waals forces of attraction के इंक्रीज होने से मोलिकुलर वेट अगर इंक्रीज करेगा तो, लेकिन ध्यान रखना कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस सेम होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन टू हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल टू अल्कोहल, ईथर टू ईथर। दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन you have to done to decide whether the liquid is less volatile or more volatile. ओके जी, तो इस लेक्चर में हमने आपको काफी कुछ बताने का प्रयास किया। केवल देखिए मैंने एक टॉपिक लिया वेपराइजेशन, उसके बारे में बताया। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आप सभी लोग यूट्यूब चैनल मास एकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्लास 12th के लेक्चर्स को आप स्टडी कर सकते हो, अपने टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब आपको डिटेल स्टडी यहाँ पर मिलेगा। ओके, थैंक यू।